Hello, students. A very fresh and beautiful morning to all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English grammar class. As you know that we started the chapter active and passive voice in the previous class. So, I hope you remembered what we studied all about, right? What is voice? When in a sentence, if the performer of the action is in the place of subject, right? Or if you can say the doer of the action is in the place of subject, then that is your active voice. And when the receiver of the action, that means the object, is in the beginning of the sentence, then you can say that it is a passive voice, or you can say the verb is in the passive voice. We have also gone through when are we going to use when are we going to use the passive voice, when the doer of the action is known और when the doer of the action is unknown, right? फिर एक सिचुएशन आती है जिसके अंदर doer of the action is not needed, उसकी information ज़रूरी नहीं है, then we can use passive voice. And also when we want to be walk about who is responsible, मतलब when we want to pretend, या फिर एक्चुअली में हमको ऐसा है कि भाई हाँ भाई हमको पता है कि किसने ब्रेक किया है या किसने की है वो एक्टिविटी, बट इफ़ वी डोंट वांट टू गिव अ क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, then also we can use passive voice. And normally the passive voice are formed only in the sentences which have transitive verbs. transitive मतलब जिसके पीछे verb ऑब्जेक्ट फॉलो होता है वो, ठीक है. अगर उनके पीछे ऑब्जेक्ट्स नहीं है, दैट मीन्स इफ दे आर इन ट्रांजिटिव, then we cannot make it into a passive voice. ओके. एंड अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नॉर्मली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो ह्यूमन बींग होता है, ठीक है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो थिंग होती है, थिंग और अ प्लेस, वॉट एवर इट इज़. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको वॉट का आंसर मिलता है देन इट वुड बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और होम का आंसर मिलता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. एंड व्हेन यू आर चेंजिंग इट टू पैसिव वॉइस यू कैन यूज़ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा हुआ था. यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, गो थ्रू दिस अगैन इफ़ यू हैव एनी डाउट. वी हैव ऑलरेडी completed exercise A. Now we are going to move ahead with exercise B. So let's see that. Here there are two reports of the same event in the newspaper. The main verbs in the first report have been underlined. और सेकेंड रिपोर्ट जो है यू नीड टू अंडरलाइन द करस्पॉन्डिंग वर्ब्स. मतलब some of the verbs which are in the sentence they have already underlined in the first report. ये जो पहला वाला रिपोर्ट है उसमें ऑलरेडी verbs underlined है, एंड अकॉर्डिंगली उसके रिलेटेड मतलब उसको करस्पॉन्ड करते हुए दूसरा जो है ये वाला, ठीक है, वो भी सेम ही है लेकिन उसमें verbs जो है वो अलग तरीके से यूज़ किए गए हैं. सो वी नीड टू फाइंड इट आउट. सो विल जस्ट रीड द फर्स्ट वन. Freedom fighters celebrate independence. Ahmedabad, August 16. The Freedom Fighters Club organized a function to celebrate 68 years of independence. They invited Mr. Ashok Desai to preside over the function. The reception committee welcomed the respected leaders warmly. The leader made a thought-provoking speech on civic responsibility. The audience cheered him enthusiastically. Now you need to find out those verbs and underline it in the second report which is same as that one. Now first of all you need to see the title, right? Freedom fighters celebrate independence, and over here 68 years of independence celebrated. So here also if you see this verb and this verb, that is different. Now second one, second report we would be underlining पहला किया हुआ है उसके साथ बी वाला verb भी है. So if there is a B verb along with it you need to underline it. Okay. Ahmedabad, August 16, a function was organized. So here we have just organized, जो हो गया यहाँ पे was organized by the Freedom Fighters Club to celebrate 68 years of independence. They invited, उसकी जगह पर यहाँ है Mr. Ashok Desai was invited to preside over the function. The respected leaders
leader was welcomed warmly by the reception committee. A thought-provoking speech on civic responsibility was made by the leader, and he was cheered enthusiastically by the audience. So here students, if you see the difference, आपके जो verbs है पहले रिपोर्ट में वो सिर्फ पास्ट टेंस में है, राइट, और यहाँ पे जो है उसमें साथ में बी वाला वर्ब भी यूज़ हुआ है. बी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड, जैसे कि आप देख सकते हो वॉज, सब में वॉज का एडिशन हो गया है, राइट. सो व्हाई इज इट सो? बिकॉज आउट ऑफ दीज टू one report is in passive voice. So what do you think, which one is passive voice? Well, we have already learned how to make, you might be knowing because this has been coming since 2-3 classes. तो आपको पता होगा कि पैसिव वॉइस कैसे बनता है, राइट. पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं जिसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो पहले आ जाता है, मतलब जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है वो पहले आता है, उसके बाद हमारा बी वर्ब होता है. बी मतलब इज, एम, आर और वॉज वर्ब, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. Then we write the past participle of the verb. Then we have to add by. And the last thing would be the subject, or you can say the doer of the action. Okay. So this formation is considered to be of passive voice. Now it depends on the tenses of the sentence. उस हिसाब से हमें be वाला verb use करना है, ठीक है. So if you see this two passive report, यू कैन मेक आउट कि ये जो दूसरा वाला रिपोर्ट है दैट इज़ इन पैसिव वॉइस. पहला वाला जो है वो एक्टिव वॉइस है, और जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्टिव वॉइस कौन सा होता है, जिसमें डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट की पोजीशन पर होता है, राइट, और जिसके अंदर सब्जेक्ट की पोजीशन, और यू कैन से द बिगिनिंग में अगर आपका रिसीवर ऑफ द एक्शन है या फिर ऑब्जेक्ट है तो हम उसको पैसिव वॉइस गिनते हैं, जो इसके अंदर है, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द टेंसेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. सो प्लीज़ पे अटेंशन, बिकॉज व्हेन यू फर्स्ट फाइंड आउट कि आपका सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, उसके बाद अगर उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है देन यू नीड टू नो कि सेंटेंस कौन से टेंस में है. अकॉर्डिंगली यू माइट बी चेंजिंग योर वर्ब. पैसिव में हमेशा जो आपका मेन वर्ब रहेगा वो पास्ट पार्टिसिपल होगा, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बी वाला वर्ब, ठीक है. सो फॉर दैट वर्ब यू नीड टू नो कि सेंटेंस कौन से टेंस में है. सो लेट्स सी दैट. स्टडी द वर्ब्स इन द एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म इन दीज सेंटेंसेस. सो लेट्स सी. द फर्स्ट टेंस ओवर हियर इज सिंपल प्रेजेंट. Celine draws beautiful pictures. Draws represents present tense, simple present tense, right? जब हम उसको चेंज करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मेट होता है वो होता है सिर्फ वर्ब के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो रिसीवर है वो पहले आ जाएगा और जो डूअर है वो बाद में चला जाएगा. एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आपका जो रिसीवर आने वाला है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बेसिस पर आप अपना बी वाला वर्ब यूज़ करोगे. अगर हम प्रेजेंट टेंस में है हमारा सेंटेंस तो हम बी वाले वर्ब कौन से यूज़ करेंगे, इज़, एम और आर. एंड अलॉन्ग विथ इट वी आर गोइंग टू यूज़ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए बी वाला जो वर्ब है, बी का फॉर्म है, उसमें 3 आते हैं, इज़, एम एंड आर. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट, राइट, जब हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे जो हमारा रिसीवर होगा वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा. सो यू नीड टू सी वेदर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. अकॉर्डिंगली यू हैव टू यूज़ इज़, एम और आर. सो हियर इफ़ यू सी स्टूडेंट्स, सेलिन वॉज सिंगुलर लेकिन ब्यूटिफुल पिक्चर्स पैसिव वॉइस में प्लूरल हो जाता है. सो उसके साथ हमने बी वाला वर्ब आर यूज़ किया है और ड्रॉ का पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है ड्रॉन, ठीक है. सो ब्यूटिफुल पिक्चर्स आर ड्रॉन बाय सेलिन. सो एज आई टोल्ड यू द फॉर्मेशन जिसके अंदर हमें बाय का एडिशन करना पड़ता है जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है उससे पहले. सो वही किया है हमने यहाँ पे, मतलब आपका जो वर्ब का फॉर्मेट होगा वो होगा बी प्लस
वर्ब पास्ट पार्टिसिपल. ओके, एंड यू नीड टू रिमेंबर सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका सेंटेंस, तो आप इज, एम और आर तीनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर जो है वो. ठीक है. नाउ व्हेन वी आर टर्निंग इट इनटू सिंपल पास्ट टेंस, अनिल मेड अ फ्रेम. When we are going to change it into past tense, we are going to use be verb plus past participle. तो यहाँ पे be verb कौन सा यूज़ होगा? Was और were. Again depending on your subject, right? जो receiver बनेगा passive voice में, और उसके साथ हम लिखेंगे हमारा verb का past participle. So remember passive voice means verb past participle. Okay? और उसके साथ be वाला verb. So here a frame was made by Anil. ठीक है. Third one is present continuous tense. Now continuous tense, how are you going to make it out? By the ing verb. ठीक है. और उसके आगे वाला जो auxiliary verb है, helping verb है, be form, right? उसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि वो present continuous है या past continuous है. Sunil and Anil are painting the big canvas. Are painting, right? That is present continuous tense. When we are going to change it, students, we need to remember, we need to write be verb, उसके बाद being ऐड करना है और फिर past participle. So the format of present continuous tense would be is, am or are according to the subject. उसके बाद हमें एक word का addition करना है, that is being, and then verb past participle. Okay. Continuous tense में whether it is present or past, we add the word being over there. ठीक है. और is, am, are use करेंगे according to the subject. So if you see this sentence, the big canvas, now that is singular, तो उसके साथ हमने use किया है is being painted by Sunil and Anil. When we are changing it into past continuous, the same thing we are going to do. The only change would be the be verb, right? जो be verb past में हम use करेंगे वो होगा was और were. उसके बाद हम लिखेंगे being, and then you have to write verb past participle. Okay? You can make out whether it is past continuous or present continuous from the auxiliary verb जो यहाँ पे है were. They were whitewashing the wall yesterday. Now when you change it, the wall is singular, तो उसके साथ हमने लिखा है was. The wall was being whitewashed by them. they का बन गया them. ठीक है. yesterday. So you need to remember that rule also जो personal pronouns के लिए होता है. ठीक है. जो personal pronoun के लिए क्या रूल होता है? You need to learn कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर कौन सा प्रोनाउन है, और वही प्रोनाउन पैसिव वॉइस में अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है तो वो डिफरेंस होता है. जैसे आई बन जाता है मी. इफ़ आई इज़ इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, व्हेन यू चेंज इट इनटू पैसिव, देन दैट आई वुड बी कमिंग बिहाइंड इन द प्लेस ऑफ रिसीवर, इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. देन वी कैन नॉट राइट आई ओवर देयर, हमको मी लिखना पड़ेगा. वैसे ही वी का हो जाता है अस, एंड जो यू है और इट है वो दोनों चेंज नहीं होते हैं. वी डोंट चेंज यू एंड इट. ओके. यू सब्जेक्ट की जगह पर है या ऑब्जेक्ट की जगह पर है वही रहेगा, एंड इन द सेम वे इट ऑल्सो. द चेंजेस हैपन्स इन थर्ड पर्सन सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल ही, उसका हो जाता है हिम. फिर शी का हो जाता है हर, और दे का हो जाता है them. So you need to remember this rule for the personal pronoun also. Okay. So यहाँ पे हो गया the wall was being whitewashed by them yesterday. Now perfect tenses. Present perfect, they have invited you, and when we change it into passive it becomes you have been invited by them. नहीं लिखा है, लिखना है तो लिख सकते हो. ठीक है. उसका फॉर्मेशन होता है हैज़, हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल. सो हियर अगेन यू नीड टू रिमेंबर
आपके एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल तो मिल ही जाएगा, तो वही वापस रिपीट होगा। और हैज़ और हैव डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। सो उसका फॉर्मेशन हो जाता है हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। ओके, एंड व्हेन वी आर कंसिडरिंग पास्ट परफेक्ट, सो उसमें हम यूज़ करते हैं हैड। आई हैड ईटन ऑल द एप्पल्स, ऑल द एप्पल्स हैड बीन ईटन बाय मी। सो उसका फॉर्मेट होता है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। यर वी कैन यूज़ हैड फॉर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विच एवर इट इज़। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ हमें प्रेजेंट परफेक्ट में ध्यान रखना पड़ता है कि हम हैज़ यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सबके साथ हम यूज़ करते हैं हैव। ओके, सो रिमेंबर व्हेन इट इज़ कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में हम बीइंग ऐड करते हैं, राइट, बी वाले वर्ब के साथ। और अगर परफेक्ट टेंस है तो उसमें हैज़ हैव या हैड होगा और साथ में एडिशन होगा बीन का। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस, दे विल डेकोरेट द क्ले पॉट्स। सो व्हेन यू चेंज इट, the clay pots will be decorated by them. So here along with will we have to use be. ठीक है, because there are no form of be verbs for future tense. जैसे is am are present के लिए है, was were past के लिए, वैसे future के लिए नहीं है. So we are going to keep it as it is, will be और उसके साथ भी वापस past participle, जैसे कि यहाँ पे है the clay pots will be decorated by them. And the last is models. Models are again the helping verbs, right? Sentence में काफ़ी अलग अलग models होते हैं. So it depends, अगर किसी sentence में is am are मतलब be वाले form नहीं है या फिर will नहीं है, तो हम लोग वैसे will भी model verbs में ही आता है. So वैसे ही यहाँ पे दो है can और may. So वो कैसे change हो जाता है, we can see that I can do it, it can be done by me, and he may drive the car may be driven by him. Now if you notice students, जैसे हमारा फ्यूचर टेंस के लिए रूल होता है वैसे ही रूल हमारा मॉडल के लिए भी होता है। ठीक है, क्योंकि मॉडल के बाद भी हमें बी का एडिशन करना है और वर्ब जो है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, सो मॉडल्स और सिंपल फ्यूचर सेम रहता है। अगर परफेक्ट है तो हैज़ हैव या हैड होगा और साथ में बीन का एडिशन होगा। अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो बी वर्ब तो होगा ही और साथ में बीइंग होगा। एंड इफ़ इट इज़ सिंपल टेंस देन यू नीड टू रिमेंबर कि अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर यूज़ करना है और पास्ट है तो वॉज वो यूज़ करना है। और सबके अंदर पैसिव वॉइस में हमारा वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल ही यूज़ होगा। ओके, so I hope कि you are clear with the tenses. So let's move on to next topic, that is present and passive. The tense of a passive sentence can be a little confusing to identify. We must remember that a sentence in passive voice will always use a past participle form of the verb even in the present tense. जैसे कि हमने अभी सीखा कि अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है सो हमारा जो वर्ब होगा वो पास्ट पार्टिसिपल ही होगा, राइट। सो इट इज़ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग और इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट कि वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है या पास्ट में है। ठीक है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि वेदर इट इज़ सिंपल प्रेजेंट पैसिव और सिंपल पास्ट पैसिव। तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ बी वर्ब का होता है जो हमने अभी पढ़ा, राइट। बी वाला फॉर्म है, अगर प्रेजेंट पैसिव हुआ तो कौन से वाले होंगे, इज, एम और आर। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट पैसिव अगर बी वर्ब इज एम आर है तो। और अगर हमारा बी वर्ब जो है वो वॉज है या फिर वर है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा पास्ट पैसिव। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो यू नीड टू रिमेंबर दैट। जैसे कि ग्रीटिंग कार्ड्स
आर मेड विथ चार्ट पेपर। यहाँ पे जो वर्ब है हमारा मेड, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन उसके साथ जो बी वर्ब है वो है आर, मतलब ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट पैसिव। और उसका एक्टिव वॉइस नीचे दिया हुआ है, वी मेक ग्रीटिंग कार्ड्स विथ चार्ट पेपर, राइट। सो व्हेन यू चेंज इट बैक इनटू एक्टिव वॉइस, अगर हमको पैसिव से एक्टिव वॉइस में लाना है तो आपको टेंस पता रहना चाहिए पहले तो, और उसके बेसिस पे अगर प्रेजेंट टेंस है तो आपका जो वर्ब होगा वो वापस कौन से फॉर्म में आ जाना चाहिए, V1 फॉर्म में, मतलब बेस फॉर्म में आ जाना चाहिए आपका वर्ब वापस, ठीक है। These pictures were painted by those children. Your were painted में painted जो है वो verb का past participle है, और जो हमारा be verb है वो past tense में है. That means this is our simple past passive. When we change it back into active voice, तो जो हमारा subject है वो वापस अपनी जगह आ जाएगा. Those children were painted की जगह पर simple past आ जाएगा, painted these pictures. ओके। इन परफेक्ट पैसिव में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव है या पास्ट परफेक्ट पैसिव है, वो डिपेंड करता है आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैज़, हैव और हैड के ऊपर, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मेट है बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल वो सेम रहता है। सॉरी, इफ़ यू सी दिस ओवर हियर, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, जो डिफरेंस होता है सिर्फ इसका होता है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम है। इफ़ यू सी दिस, राइट। सो उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा, अगर सेंटेंस में हैज़ या हैव है तो वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर पैसिव वॉइस में हैज़ हैव नहीं है और हैड है तो वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर, in perfect passive, have or has is used to show present tense and had is used for past tense, और been plus past participle is constant, दोनों में सेम ही रहता है। So the dish has been made by my mother. So been made तो है ही हमारा been plus verb past participle, लेकिन जो auxiliary verb यूज हुआ है वो है has, which presents present perfect passive, okay. And if you see the second sentence, all the apples had been eaten by me. Again over here been eaten वो है हमारा been plus past participle, और जो auxiliary है वो है had, which presents past perfect passive, okay. And in continuous tense, now in continuous also being plus past participle सेम होता है, सो डिफरेंस कहाँ पे होता है, वापस बी वाले वर्ब में। यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस, द ओनली डिफरेंस इज बी वर्ब, बाकी का बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल सेम रहता है। यहाँ पे देखो बी वर्ब इज है और यहाँ पे वॉज है, राइट। सो यहाँ पे भी आपको बी वर्ब ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ही आपको पता चलेगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव है या प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव है, ओके। इफ यू सी द सेंटेंसेस ओवर हियर, function is being organized to celebrate Women's Day and a function was being organized to celebrate Women's Day. So if you see both the sentences students, being organized तो दोनों में सेम ही है, जो डिफरेंस है वो है आपका बी वाला वर्ब, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव है उसमें यूज़ हुआ है इज, और पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव है उसमें यूज़ हुआ है वॉस, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कौन सा प्रेजेंट पैसिव है और कौन सा पास्ट पैसिव है। नाउ ओवर हियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज सी, you need to read this news item and underline the verbs in passive construction. That means the sentences which are having the passive voice,
उसका जिसका वर्ब पैसिव वॉइस में है उसको अंडरलाइन करना है हमें. ओके, सो लेट्स सी दैट. Harappan sites excavated. Bhilwara. A Harappan site has been excavated by the archaeologist of Ujjayana in Bhilwara district of Rajasthan. Here students, if you notice, we have present perfect passive, right? Has been excavated, right? क्योंकि उसके बाद by यूज़ हुआ है और हमारा जो doer of the action है वो भी पीछे है. The existence of a highly developed civilization in this area has been indicated by the latest discovery. Has been indicated. Again, present perfect passive. This was started by Superintendent of the Archaeological Survey of India. Sorry, this was stated by Superintendent. So again, was stated is simple past passive. ये दोनों जो है, ये पहला वाला और ये जो दूसरा है, वो दोनों क्या है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव. और ये जो है वॉज स्टेटेड, दैट इज आवर सिंपल पास्ट पैसिव. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. इट इज प्रूव्ड बियॉन्ड द डाउट that the city was destroyed by the devastating fire. It is proved. Here again, is proved is simple present passive, and the doubt was destroyed by a devastating fire. Was destroyed. This is our past passive. Okay, simple past passive. और ये है हमारा simple present passive. यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान रख सकते हो जब आप फाइंड आउट करते हो कि आपका सेंटेंस पैसिव में है या एक्टिव में है. टेंस तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सेंटेंस प्रेजेंट वो आपको ध्यान देना है कि जो एक्शन है, जो वर्ब है, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है कि ये एक्शन कौन कर रहा है, हु इज़ कैरिंग आउट दैट एक्शन. नाउ इफ दैट आंसर इज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस देन इट वुड बी एक्टिव वॉइस, और अगर वो आपके एंड में है तो वो हो गया आपका पैसिव वॉइस. ठीक है. So that is also another way to find out whether your sentence is in active or passive voice. Now let's see the next thing. All the articles were burnt in this fire. Were burnt. Who burnt it? We don't know. है ना, लेकिन क्या बर्न हुआ है? आर्टिकल्स जो रिसीवर है, सो वो स्टार्टिंग में है तो ये भी पैसिव कंस्ट्रक्शन है. Were burnt. This is your simple past passive. Burnt wheat grains were also found here. Were found, that is again simple past tense, क्योंकि ढूंढा मिला था वहाँ पे. सॉरी, were also found. किसने ढूंढा वो नहीं मालूम है. Wheat was cultivated by the people of this area. Was cultivated is again the passive construction. This fact has been indicated by those burnt grains. Mud houses with many chambers have been found. Bricks were also used by those people. The floor of their house was made in such a way that seepage and microbes could not affect them. So again students, wheat was cultivated by the people. So this is passive construction and this past passive, simple past. Has been indicated, that is present perfect passive voice. Mud houses with many chambers have been found. Now this is again present perfect passive voice. Bricks were also used by those people. Were used, किसने यूज किया था? people ने. So that is at the end of the sentence. So this is again passive construction. And the floor of their house was made. किसने बनाया था? We don't know about that. So this is again a passive voice and it is simple past tense. So students, I hope that you are clear with this exercise. And exercise D and E is homework for you. You have to do it by yourself. I would be sending the answers along with this. You can check it afterwards, but please try to do it first by yourself. And if you don't understand anything, please ask me in the live class. Thank you.